ऑलराइट, तो आपको मैंने बता ही दिया था ये बात कि मैनेजर जो है वो फाइनली रिस्पॉन्सिबल वही होगा। इसका मतलब है जो डायरेक्टर जो है ना, they'll ask the manager about it. अब मैनेजर cannot give that kind of an excuse कि जी उसने सही काम नहीं किया। वो तो ये कहेंगे why have you assigned why have you given the authority to someone who was not capable of doing it। तो ये फिर मैनेजर पे बर्डन आ सकता है। तो मैनेजर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है whether the employee deserves that power or whether the employee is able to perform better or able to take decisions effectively or not। अच्छा, फिर इसके बाद आता है जी third, worker might do a better job than manager। Yes, so an employee can be a threat to the manager as well। Let's say manager assigns a task to the manager to the employee and gives delegation to the employee as well, and now the employee is performing the job much better than the manager and taking the decision effectively। Now the board of directors can say if the employee is performing their job better than manager, why would we have a manager then? So they might think that maybe manager is not required and that the same employee can do the job of the manager as well। So in that case, that employee becomes the rival of the manager। So manager may have a threat that if employee performs well after getting the independence, so my job might be at stake as well। तो ये एक इशू भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है जो इनकॉम्पिटेंट मैनेजर्स होते हैं। नॉर्मली कॉम्पिटेंट मैनेजर्स को तो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, फिर एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन फॉर द सबऑर्डिनेट देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट मैंने पहले बताया कि पीपल हु आर एम्प्लॉइज हु वर्क डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर। तो उसमें डेलीगेशन हेल्प्स टू ट्रेन वर्कर्स व्हिच गिव्स देम बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स जब आप डेलीगेशन करते हैं तो ऑब्वियसली डिसीजन लेने होते हैं एंड एम्प्लॉइज हैव नॉट टेकन द डिसीजन इन देयर लाइफ फॉर एग्जांपल। तो इट मींस फॉर दैट दे रिक्वायर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज बिफोर giving the authority or the power, right? तो उससे क्या होता है कि now the employee become more skillful, right? And now employees can get lot of other opportunities जो वो पहले अवेल नहीं कर पा रहे थे। कि कहीं मैनेजर की जॉब थी फॉर एग्जांपल, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दे हैव नो आइडिया हाउ टू परफॉर्म अ जॉब ऑफ अ मैनेजर। अब जब उनको डेलीगेशन दिया गया जहां पर वो डिसीजन ले रहे हैं सेम एज मैनेजर्स regarding their job, so now they can apply for other posts as well which they were not able to do it earlier। तो वो वहां पर भी इसका मतलब है तो उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज फिर बढ़ जाती हैं बिकॉज नाउ दे आर मोर स्किल्ड इन दैट केस आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग। अच्छा, इसी तरह फिर वर्क becomes more interesting and rewarding। Yes, because now employee is doing it independently, so if the job is done well, it means employee will be appreciated। There will be a pat on his or her shoulders। There will be a reward for the employee। Now the manager cannot actually take the advantage that yes, I was the manager and I took the decision and that is why the employee was able to perform well। No, because the independence was given, so it means that the employee will be appreciated because all the decisions were taken by the employee। So in that way employee can be highlighted and can be made prominent। और उसमें later on उसको reward मिल सकता है in the form of higher wages as well, or employee can be promoted to a higher rank as well। तो वो ज्यादा interesting और rewarding, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको कहा था। ये जब work become more interesting and rewarding हो गया तो ये क्या बन गया, इसके लिए क्या टर्म आती है, कल बात की थी इस पे, जॉब सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड, जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है डेलीगेशन इज अनदर वे टू गिव जॉब सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉइज। तो उसमें अब उनको इंडिपेंडेंस मिल गई है और उन्हें पता है जो वो करेंगे अच्छा करेंगे तो उनको ही अप्रिशिएट किया जाएगा। A word of appreciation will be there as well apart from other financial rewards। अच्छा, फिर हम नीचे आते हैं तो एम्प्लॉय फील सेटिस्फाइड that trust is being put on them। Yes, okay, yes, I had the caliber and they trusted me and they gave me the power to take the decision। तो उससे एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी है वो बहुत बढ़ जाती है and employee is less likely to leave the job, जिससे लेबर टर्नओवर वगैरह भी कम हो जाता है। तो इसको डेवलप कर सकते हैं। इसमें कोई पॉइंट है जो आप नहीं डेवलप कर सकती? मैंने वैसे कर तो दिए हैं, अगर है तो मुझे बता दो। नो सर। All right, so then we move forward and that is there is another term chain of command and span of control। तो आपने याद रखना है, मैंने यहाँ पर organization structure बनाया हुआ है। chain of command shows
how information passes from top level to lower level management. Basically it shows the levels of management, simple as that. इसका मतलब है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कि सीईओ से अगर आपने इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर मिडलैंड को देनी है तो आप सीईओ से पहले इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग को देंगे और डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग फिर आगे मिडलैंड जो मैनेजर मार्केटिंग है उसको देगा। वैसे एरो नहीं बना हुआ लेकिन बनना चाहिए था, बहरहाल मैंने तो एक पिक्चर ली है ना, पेस्ट की है। तो इस तरह से ये है चेन ऑफ कमांड। तो चेन ऑफ कमांड लेवल्स को भी शो करती है। अगर पेपर में सवाल आता है, जो कि आता भी है, कि कितने चेन ऑफ कमांड क्या है, तो आप क्या बताओगे इसमें चेन ऑफ कमांड क्या है? एक, पहला लेवल, दूसरा, तीसरा। तो आप कहेंगे चेन ऑफ कमांड 3 है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन हैज टू पास डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, एंड देयर आर 3 लेवल्स द मैसेज हैज टू पास थ्रू, राइट। इसी तरह अगर मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करता हूं तो चेन ऑफ कमांड तो ऐसे हम देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन टॉप टू बॉटम। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग अंडर अ मैनेजर और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि डायरेक्टली वर्किंग अंडर अ मैनेजर जो कि आंसरेबल है टू द मैनेजर। तो अब वहां पर अगर मैं बात करूं सीईओ का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? How many? Directors, 4 directors. 4, yes, 4 डायरेक्टर। और डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? 3 marketing managers. वेरी गुड, यानी कि 3 आ गया। और मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? 6 employees. या जी 6 एम्प्लॉइज, वेरी गुड। इसका मतलब है स्पैन ऑफ कंट्रोल वेरीज फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर, सिंपल इज दैट। स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी डिफरेंट फॉर एवरी मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग अंडर हिम और हर। लेकिन जो चेन ऑफ कमांड होता है ना, इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है ना। वो चेन ऑफ कमांड 3 है, वो 3 ही रहेगा, लेवल्स बढ़ नहीं रहे, वो उतने ही है। वो तभी कम होंगे या ज्यादा होंगे अगर आप ज्यादा लेवल्स ऐड कर दें, क्या आप लेवल कम कर दें, कम भी कर सकते हैं, बहरहाल वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपने याद रखना। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो इट इज अबाउट इंडिविजुअल मैनेजर, चेन ऑफ कमांड इज अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये नीचे मैंने बता दिया है चेन ऑफ कमांड, ये मैंने वही एग्जांपल दी है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे एक टर्म आगे डी लेयरिंग की, ये आपको पता होनी चाहिए। डी लेयरिंग जैसे मैंने आपको नाम से नजर आ रहा है कि यू रिड्यूस द नंबर ऑफ लेयर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, simple as that, and the purpose could be to reduce the cost of the business and to increase the effectiveness of communication। मतलब कि मैसेज विल बी पास डाउन वेरी क्विकली। जैसे कि अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर को हटा दूं, जो सेंटर वाला लेवल है ये वाला, इस लेयर को हटा देता हूं, अब इसका मतलब है कि डायरेक्टर जो मार्केटिंग एचआर फाइनेंस ऑपरेशन है उनके नीचे डायरेक्ट ये बंदे आ जाएंगे 6 जो हमें नजर आ रहे हैं नीचे, राइट। तो इसका मतलब ये हो कि लेवल्स कम हो गए। नाउ इंफॉर्मेशन कैन बी पास डाउन क्विकली and can be acted upon quickly as well. So it means organization will be able to respond to the changing environment, जैसे कि कस्टमर्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है, बाय करने का बाइंग पैटर्न चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, इनकम लेवल चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बिजनेस विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज और चेंजेस क्विकली बिकॉज ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन जल्दी से जो है ना वो नीचे से ऊपर भी जा सकती है, from subordinates to the top level management and from the top level management to the lower level managers or employees। तो उसमें कॉस्ट भी बच जाती है और आपका जो मैसेज का सेंड करने का टाइम है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, तो वो डी लेयरिंग इसीलिए की जाती है, और जब डी लेयरिंग की जाती है तो याद रखिएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी यहाँ पे अभी चेन ऑफ कमांड क्या है? चेन ऑफ कमांड क्या है यहाँ पर, बता दो सर किस वाले में? नहीं, चेन ऑफ कमांड इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, यही इसमें ये जो डायग्राम बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, चेन ऑफ कमांड क्या है? नहीं पता चल रहा? सर एक सेकेंड। चेन ऑफ कमांड मींस हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन? सर 3 levels हैं। 3 levels, that how many levels the message has to pass through, तो वो 3 है, फाइन। तो जब बीच वाली लेयर उड़ा दी तो कितने रह गए? 2 रह गए, फाइन, ओके डन, 2 रह गए। अब इसका मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ शॉर्टर स्ट्रक्चर। अब वो लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट हो गया, अच्छा फाइन। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर शॉर्ट या लॉन्ग किस वजह से होता है? चेन ऑफ कमांड की वजह से। अगर मैं इसमें एक और लेवल ऐड कर दूं,
जैसे कि मैं यहाँ अभी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि दिस इज अ बिट टेक्निकल। लेट्स से दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पे 3 लेवल्स है, एक यहाँ बंदा काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है, इसके नीचे भी 4 बंदे काम कर रहे हैं, और इसी तरह से इस बंदे के नीचे 2 बंदे काम कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे लेवल कौन से, एक लेवल ये 1 2 3, राइट। अब मगर और ऐड कर लूं नीचे, ये देखो यहाँ मैंने और ऐड कर लिया, ठीक है, इसके नीचे और 2 बंदे काम कर रहे हैं, लेट्स से, बल्कि ऐसे मैं और ज्यादा बल्कि बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे लेवल, ये इतने काम कर रहे हैं, इसके नीचे भी इतने बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदे के नीचे। तो अब आप गौर करो तो हमारे पास लेवल्स कितने हो गए, एक लेवल ये एक हो गया, 2 3 4 लेवल हो गए, स्ट्रक्चर टॉल हो गया। अब अगर मैं इसमें से फर्ज किया कि ये वाला लेवल उड़ा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, दैट इज व्हाट वी कॉल डी लेयरिंग। तो अब ऑटोमेटिकली लेयर्स कम हो गई हैं, 3 लेयर्स हो गई हैं, स्ट्रक्चर जो लॉन्ग था वो शॉर्ट हो गया, तो मैसेज ऑफ कोर्स जल्दी पहुंचेगा टू द इंटेंडेड पर्सन। ये समझ आ रही है ना? Yes. ठीक है, तो अब ये तो है चेन ऑफ कमांड, और ये हमने क्या कर दी, डी लेयरिंग। और डी लेयरिंग क्यों की जाती है मैंने आपको बता दिया, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अब वो बंदे उनको पे नहीं करना पड़ेगा, और मैसेज भी आप जल्दी से सेंड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो उसे होगा क्या, उसे ये होगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल पे आप गौर करो। पहले स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये जो साहब थे जिनको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या था? 3. 3 कैसे, ये 1 2 3 और ये 4 नहीं, Oh yes, sorry, 4. 4 है, कोई बात नहीं। तो ये स्पैन कंट्रोल 4 है। अब और उससे नीचे ये जो साहब थे, ये वाले, इनको मैं बी का नाम दे देता हूँ, इनका स्पैन कंट्रोल क्या था? 5. 5, वेरी गुड, इनका 5 था। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब मैंने ये हटा दी लेयर, ये वाली लेयर मैंने खत्म कर दी, अब मुझे बताएं कि अब ये हमने खत्म कर दी, ठीक है। अब ये जो साहब हैं, कौन से वाले, बी, अब बी जो है, अब वो बी के नीचे कितने बंदे काम कर रहे हैं? Sir, 6. जी, अब ये खत्म हो गया, इसका मतलब है ये जो बी जहां काम कर रहे हैं, अब इसका मतलब वो लेयर ही खत्म हो गई, तो वो नीचे बंदे मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब है ये साहब भी चले गए, अब डायरेक्ट ये 1 2 3 4 5 6, अब ये डायरेक्ट 6 इनके नीचे डायरेक्ट आ गए, वो हटा दिया बंदा बीच में से। तो अब हुआ क्या कि स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया, वो पहले 5 था, अब वो 6 हो गया। तो ये होता है, आप जितना यू गो डाउन द हायरार्की, यू डाउन द लेवल, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हैं उतना ही कंट्रोल कुछ बंदों के पास रह जाता है। जैसे आप टॉप पे देखो तो एक ही बंदा है, उससे नीचे जाओ तो 3 हो जाते हैं, उससे नीचे जाओ 4 हो गए, है ना। और जितना आप नीचे जाते जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसलिए जब आप लेयर उड़ाओगे तो वो जो नीचे वाली लेयर रह गई हुई है, आपने सेंटर वाली उड़ाई है ना हमने, तो ये वाली, तो वो भी फिर उस मैनेजर के अंडर ही आ जाएंगे, जिसकी वजह से स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। बताने का मकसद क्या है कि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप चेन ऑफ कमांड को कम करोगे थ्रू डी लेयरिंग, आपने डी लेयरिंग की, चेन ऑफ कमांड कम हो गया, लेवल्स कम हो गए, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज लाइकली टू इंक्रीज, ये याद रखिएगा। और स्पैन ऑफ, इसी तरह से अगर आप चेन ऑफ कमांड को लंबा करोगे, लॉन्ग करोगे, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता जाएगा। मैं उसकी एग्जांपल एक और जगह दे रहा हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास यहाँ पर ये सिलसिला बना हुआ है, आगे एक साहब यहाँ पर भी मौजूद है, ये मैं ए, ये बी, ये सी, और इनके नीचे हमारे पास 3 बंदे आ रहे हैं, ये सी मैनेजर आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, अभी यहाँ नजर आ रहा है कि 2 ही लेवल है हमारे पास। तो अब ए के नीचे कितने बंदे काम कर रहे हैं? ए का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? ए का स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है, राइट? Yes. तो अब अगर मैं ये वाली लेयर उड़ा दूं, अब ये काम नहीं कर रहे, तो अब क्या हुआ, अब इनको कौन कंट्रोल करेगा? सिर्फ स्पैन ऑफ कंट्रोल 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा, क्योंकि अब ना तो ये बंदा है ना ये बंदा है। अब ए के नीचे डायरेक्ट ये तीनों बंदे, ये 3 बंदे, ये बी के भी ए के नीचे ही आ रहे हैं, और सी के जो 3 बंदे हैं वो भी ए के नीचे ही आ रहे हैं, तो ए का स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया। अच्छा,
ये तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट हो गया, लेकिन शॉर्ट होने से स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ए का बढ़ गया। तो आपने ये बात जरूर याद रखनी है, जब भी चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका बढ़ जाएगा, और स्पैन ऑफ कंट्रोल या तो वाइड होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर को फैट करता है, या ये नैरो होता है, ये स्ट्रक्चर को थिन करता है। ये है किसमें, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात में कर। और अगर मैं बात करूं चेन ऑफ कमांड की, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो चेन ऑफ कमांड जो है वो या तो लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है। लॉन्ग लॉन्ग होगा तो स्ट्रक्चर को टॉल कर देगा, और अगर वो शॉर्ट है तो वो स्ट्रक्चर को भी शॉर्ट कर देगा। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब एक बात जो याद रखनी है वो यही जो मैंने अभी बताया है, चेन ऑफ कमांड अगर लॉन्ग होगा, चेन ऑफ कमांड अगर लॉन्ग होगा तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा हमें नैरो नजर आएगा, ये इससे मिलता है। और अगर चेन ऑफ कमांड शॉर्ट है या आपने कर दिया है थ्रू डी लेयरिंग, तो उससे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है मैनेजर का या मैनेजर का, वो वाइड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको भी दिखाया भी। जब स्ट्रक्चर टॉल था तो ए का स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 था, यानी कि स्ट्रक्चर जब टॉल था, रिलेटिवली टॉल था, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 था, यानी कि नैरो था। लेकिन जैसे ही हमने डी लेयरिंग की और स्ट्रक्चर को शॉर्ट कर दिया, तो ए का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल था वो ऑटोमेटिकली बढ़ के 6 हो गया, यानी कि वाइड हो गया। समझ आ रही है बात की है? Yes. और राइट, बस ये आपको समझाना था जो जरूरी था। अच्छा, अब तो डी लेयरिंग खैर मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या करते हैं। आप एडवांटेजेस जल्दी से देख लें कि चेन ऑफ कमांड को शॉर्ट अगर करें तो क्यों करते हैं। एक, मैसेज कैन बी सेंड क्विकली फ्रॉम टॉप लेवल, फ्रॉम टॉप टू लो लेवल एज देयर आर लेस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मैसेज जल्दी पहुंचने से क्या होगा ये आप खुद बता सकते हैं कि डिसीजंस कैन बी टेकन क्विकली, और यू कैन हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटर से पहले चीज निकाल सकते हैं, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहले पूरा कर सकते हैं, डेडलाइंस को मीट कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। जिससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ सकती है, सेल्स बढ़ सकती है, प्रॉफिट बढ़ सकता है वगैरह वगैरह। पर मैसेज इज लेस लाइकली टू डिस्टॉर्ट एज लेस इंटरमीडियरीज आर देयर। अब इसका मतलब है जब शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है, मैसेज इज has to pass through from limited number of people, has to pass through lower levels, less levels। तो इसका मतलब है कि मैसेज जो है वो ओरिजिनल शेप में रहेगा और इंटेंडेड बंदे को इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म पहुंच जाएगा। तो ये भी बात समझ आती है, और उससे एम्प्लॉइज आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, और क्वालिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इनकरेजेस डेलीगेशन। हाँ, जब भी मैंने आपको बताया चेन ऑफ कमांड जब शॉर्ट होगा तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑटोमेटिकली मैनेजर का वाइड हो जाएगा। हर मैनेजर का ही जो भी है वो डिफरेंट हो सकता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल हर मैनेजर का डिफरेंट होगा, लेकिन वाइड होगा सबका, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, अब तो अब ये डेलीगेशन क्यों इंकरेज कर रहा है कि बिकॉज व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल विल इंक्रीज, जब चेन ऑफ कमांड शॉर्ट कर दिया है तो नाउ मैनेजर हैज टू डील विद मैनी वर्कर्स। तो उसके लिए उन वर्कर्स को डील करना, वो कहेंगे जी कि बेहतर है कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दें हम एवरी नाउ एंड देन। इट इज बेटर दैट वर्कर्स शुड टेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन एंड वी बेटर इन्वॉल्व इन सम अदर इंपॉर्टेंट टास्क व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो मैंने पहले बात बताई थी, तो ये फायदे डेलीगेशन के भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखे जा सकते हैं शॉर्ट चेन ऑफ कमांड के। और फिर मैंने आपको ये भी बताया अभी कि ये पेपर में सवाल आया था तो बच्चे परेशान हो गए थे, हिरार्किकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसको टॉलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वेयर देयर आर सो मेनी लेवल। तो मैंने लिख दिया है कि हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता क्या, यहाँ पर मोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और उससे होता क्या है, लीडिंग टू डिस्टॉर्टेड मैसेज एंड स्लो कम्युनिकेशन। तो मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, मैंने पेपर में बेसिकली सवाल आता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हिरार्किकल हो या टॉलर हो, दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उसका क्या नुकसान है या उसके फीचर्स क्या हैं, तो आप बता सकते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होंगे और उसका नुकसान है डिस्टॉर्टेड मैसेज और स्लो कम्युनिकेशन, और उसको डेवलप करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं कि इफ कम्युनिकेशन इज स्लो तो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन ए नेगेटिव वे। फिर डिसीजन मेकिंग पावर स्टेज एट द टॉप, सो बेटर कंट्रोल। ये भी बताया था कि अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो टॉल होता है तो इसका मतलब है हर बंदे के पास जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कम है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है, और उसमें फिर डेलीगेशन नहीं की जाती और पावर जो है
वो फिर टॉप पे ही रहती है, वो आगे ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे अगर स्ट्रक्चर टॉल नहीं होगा ना, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हर मैनेजर का बढ़ता जाएगा, तो वो अपनी पावर्स आगे ट्रांसफर करते जाएंगे वर्कर्स को थ्रू डेलीगेशन। ठीक है, तो और जिसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, आप लिख सकते हैं डेलीगेशन में प्रॉब्लम भी तो है ना। तो यहाँ पर ये एक फायदा भी है कि चूंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा तो ज्यादा वर्कर्स नहीं है, मैनेजर कैन इजीली डील द वर्कर्स ऑन डेली बेसिस, जो दिन में आ जाएंगे एक दो दफा, एंड मैनेजर कैन स्टिल फोकस ऑन हिज और हर जॉब। तो उसमें फिर, और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि पावर रहेगी टॉप पर, और टॉप पर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उनके पास पावर रहेगी तो फायदा क्या है? दे आर experts, they have huge experience of running organizations, the decision making ability they have, none other than them can have that, क्योंकि उनका तो काम ही है डिसीजन लेना, और वो 25-30 साल से यही काम कर रहे हैं। तो when things are in their hand, decision making power is in their hands, of course they are able to manage the business in a better way, and they have better control, मतलब who is doing what, whether the person is doing the right thing, or whether the person is in the right direction or not, doing his job well or not, doing the assigned task. तो वो कंट्रोल जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी लेके आता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि throughout the organization the work is being performed in the same way, the quality is up to the mark, quality is not compromised in any way in any of the department। तो वो होता है फायदा, क्योंकि हर एक ने अब अपना काम नहीं करना, everybody is supposed to follow orders which will be given by the top level management। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन तो फिर स्टैंडर्डाइज्ड है ना, हर एक को दी जा रही है, फिर वो फॉलो कर रहा है। तो उसमें फिर चांसेस कम है कि जो इंफॉर्मेशन है वो जो एम्प्लॉइज हैं दे माइट नॉट बी क्लियर, ऐसा होना मुमकिन शायद ना हो, लेकिन और गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जब कंट्रोल नहीं रहता और डेलीगेशन कर दी जाती है, तो उसमें फिर हर बंदा अपनी समझ के मुताबिक डिसीजन लेता है, जिसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक्स इंक्रीज। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है इसके अंदर। तो ये एक नई चीज थी, वैसे ये बुक के अंदर भी मौजूद नहीं है, मैंने ये ऐड कर दी है नोट्स में, क्योंकि ये पास पेपर में आई हुई है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका होना जरूरी है। राइट, अच्छा ये भी हो गया। आगे हमारे पास अब इसमें पूछना तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको असल चीज है, पॉइंट्स आर देयर बट यू आर सपोज टू डेवलप देम वेल, इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें लगाता हूँ एक्सप्लेन करना। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डेवलप हो जाएंगे ना? No, sir. Yes, sir. All right, okay. तो आगे line staff manager है, I'll explain it in the next class. I think that is sufficient for today.